Hello everyone, welcome on my channel. So मेरे channel पे you'll be getting short notes which will precisely cover everything which can come in your school exams. These notes are made keeping in mind the deleted syllabus for session 2023-24. So let's get started. In this video we will be covering unit and dimensions. First topic is physical quantity. Physical quantity का definition is property of the material or radiation which can be measured. Okay, this means length can be measured, mass can be measured, while emotions, feelings can't be measured, so they are not physical quantities. Physical quantities are divided into two types. First is fundamental physical quantities, second is derived physical quantity. Okay, now fundamental physical quantities are those physical quantities which are independent of other physical quantities. There are 7 plus 2 fundamental physical quantities. Derived physical quantities are those which are dependent on fundamental physical quantities. For example, speed, force, etc. Speed is dependent on length and time. Force is dependent on mass and acceleration, etc. etc. Fundamental physical quantities. First one is length. This is a physical quantity. This is its unit, that is meter, and this is its symbol. You have to learn all this. Okay. Then you have unit. Unit is the standard of measurement. We can represent a physical quantity with the help of this formula. Okay, quantity is equal to number of time into unit. Now for example, we take length. Length is a physical quantity, is equal to number of time. Say for example 2 into unit. Unit is meter, right? So length is equal to 2 meters. That is how we represent a physical quantity. System of measurement is the next topic. इसके अंदर 3 है, FPS, CGS and MKS. Okay, FPS is foot pound second, CGS is centimeter gram seconds and MKS is meter kilogram second. Now what is SI unit? SI unit is the international system of units. SI units के अंदर भी जो इंडिया वाला system of measurement है वही यूज़ किया जाता है, that is meter kilogram and second. SI unit का full form is system internationally the units. ओके, देन यू हैव सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़. ये दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. ओके, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. ये वही दो है जो 7 + 2 में जो +2 है वो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं. प्लेन एंगल का यूनिट इज़ रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट इज़ स्टेरेडियन. नाउ द थिंग टू नोट अबाउट देम इज़ ये जो है वो डायमेंशनलेस होते हैं लेकिन यूनिट्स इनके पास होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. ओके, अब ये डायमेंशनलेस क्यों होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग प्लेन एंगल लें, प्लेन एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस. लेंथ ऑफ द आर्क का भी डायमेंशन इज एल एंड रेडियस का भी डायमेंशन इज एल. तो एल से एल कट के फिर वो डायमेंशनलेस हो जाएगा. लेकिन मीटर से मीटर कट के ये यूनिटलेस नहीं होता है, इसका यूनिट होता है दैट इज़ रेडियन. देन वी हैव अ टॉपिक दैट इज़ हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन. सो हाउ will you convert degree into radian? For this we have a formula that is radian is equal to pi upon 180 into degrees. Pi is equal to 180 degree. Pi is equal to 180 degree. This you have to remember. Okay. अब पाई बाई 2 करना है तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए टू मेक इट ईजियर एंड क्विकर फॉर यू टू सॉल्व दी सम्स. ओके, देन यू हैव अ स्मॉल नोट दैट इज 1 degree कैन बी रिटन एज 60 minutes. 1 degree कैन बी रिटन एज 60 minutes. अब 60 minutes का जो डिनोशन है दैट इज़ 1 dash above 60. Okay, also 1 minute is equal to 60 seconds. 1 minute is equal to 60 seconds और 6 seconds का जो है denotion that is double dash. Okay, then we have advantages of SI unit. सबसे पहला advantage is that it is internationally accepted. Then the next advantage is that it is metric system. Metric system means SI unit के जो दूसरे units हैं, मतलब दूसरे जो units है they can be expressed as the powers of 10 of that SI unit. For example, जैसे कि नैनोमीटर है, ठीक है. नैनोमीटर is not an SI unit लेकिन it can be expressed in the form of SI unit. 1 nanometer is equal to 10 to the power of 9 meters. Okay, that is what metric system means. Then we have a rational system.
Rational system means it uses only one unit for a given physical quantity, okay, or one type of quantity must have only one unit. For example, heat energy का जो है कैलोरी होता है, वर्क एनर्जी का जो है जूल होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो है किलोवाट आवर है. अब इन सबको हम लोग जूल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज हीट एनर्जी इज ओनली हैविंग calorie as its SI unit, work energy is having joule as its SI unit, and electrical energy is having kilowatt hour as its SI unit. Okay, then we have order of magnitude. Order of magnitude is nothing but जब तुम एक नंबर को 10 के पावर्स में डिनोट करते हो या एक्सप्रेस करते हो, तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पे देखना है. सबसे पहला तो है पहले तुमको देखना पड़ेगा तुम राउंड ऑफ कैसे करते हो. तो सबसे पहले वी हैव ट्रिक टू राउंड ऑफ द नंबर. ओके, फर्स्ट इज़ अगर ए जो है मतलब ये जो नंबर है वो अगर 5 से छोटा है या इक्वल टू 5 है तो वी कैन राउंड इट ऑफ टू 1. अगर 5 से बड़ा है या इक्वल टू या 10 से छोटा है या इक्वल टू 10 है तो हम उसको 10 तक राउंड ऑफ करेंगे. ओके, 10 पे राउंड ऑफ करेंगे. देन दिस इज़ द मैग्नीट्यूड. 10 का क्या बोलते हैं पावर. ओके, पावर इज़ b एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल है 5.33 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 5.33. 5 से बड़ा है तो हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया 10 के ऊपर, तो 10 की पावर 1 आ जाएगी इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 एज इट इज़ आएगा. सो 5 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 6. सो यहाँ पे 6 जो है यहाँ पे जो 6 है वो हो जाएगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ओके, देन यू हैव द नेक्स्ट एग्जाम्पल 623 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2. अब पहले तो हमको 623 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं है. ओके, उसको हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना पड़ेगा, मतलब एक डिजिट उसके बाद में डेसिमल. ठीक है, तो जब हम लोग ऐसे करते हैं तो हमको उसमें डालना पड़ेगा इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2, राइट, इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2. सो 10 टू द पावर ऑफ 2 एंड द ऑलरेडी गिवन 10 टू द पावर ऑफ 2 एड अप टू मेक 10 टू द पावर ऑफ 4. ओके, देन वी हैव 6.23 राउंडेड ऑफ टू 10. ओके, देन बाय एडिंग दिस 1 + 4 ये ऑर्डर ये जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगे. वी गेट 10 to the power of 5 and 5 here is the order of magnitude. Okay, then you have the next topic that is some common practical units. ठीक है, तो हमारे पास स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए कुछ यूनिट्स है, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए कुछ यूनिट्स है विच यू हैव टू बी फेमिलियर विथ, क्योंकि ये आगे बहुत जाके यूज़ होगा. फर्स्ट इज़ फर्मी. फर्मी इज़ 10 टू द पावर ऑफ -50. ये रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन वगैरह मेजर करने के लिए यूज़ होता है. देन देर इज़ एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर. ये किसके लिए यूज़ होता है? वेवलेंथ वगैरह मेजर करने के लिए यूज़ होता है. देन यू हैव नैनोमीटर. 10 टू द पावर ऑफ -9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर. ये भी वेवलेंथ मेजर करने के लिए यूज़ होता है. देन यू हैव माइक्रोन. ठीक है, 1 micrometer is equal to 10 to the power of -6 meter. Okay, then you have for large distances. For large distances we have first is light year, like, right? So light year is nothing but distance which is traveled by the light in vacuum in 1 year. 1 light year is equal to 9.467 into 10 to the power of 15 meter. Then you have astronomical unit. Astronomical unit is mean distance of earth from the sun. Astronomical unit is nothing but the mean distance of the earth from the sun. 1 AU is equal to 1.46 into 10 to the power of 11 meter. Then you have parsec. 1 parsec or parallatic second is the distance at which an arc of length 1 AU सबटेंड्स एन एंगल ऑफ आर्क 1 सेकेंड. मतलब वो जो एंगल है वो 1 सेकेंड का होना चाहिए एंड जो आर्क लेंथ है वो होना चाहिए 1 AU के बराबर. नाउ 1 AU इज इक्वल टू 1 parsec is equal to 3.08 into 10 to the power of 16 meters. Then there we have a notable point, that is 1 parsec जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है. उसके बाद आता है 1 लाइट ईयर और उसके बाद आता है 1 AU. ओके, ऑल्सो अगर तुमको
ये रेडियन में कन्वर्ट करने को आए या तुम्हें कोई क्वांटिटी दे दे जिसको तुमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू. दैट इज़ 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन. फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको दिया हुआ है 32 डिग्रीज़ को तुमको कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई दिस विथ 32, राइट. Then you have the next, that is 1 minute is equal to 2.908 into 10⁻⁻4 second. Likewise you have it for 1 second, right. Then you have the next topic, that is significant figures. इसके कुछ rules होते हैं and इससे बहुत ज़्यादा questions आते हैं एग्जाम में. First rule is that all non-zero digits are significant numbers. ओके, दिस इज़ वेरी इजी. इसमें जो भी नॉन ज़ीरो होंगे, मतलब ज़ीरो छोड़ के 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. नेक्स्ट यू हैव इफ़ द नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो, मतलब पॉइंट्स में, लेस देन 1 मतलब पॉइंट्स में, देन ज़ीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल, ज़ीरो विच इज़ टू द राइट ऑफ द डेसिमल, ओके, बट to the left of the first non-zero digit. This is to the right. These zeros are to the right of the decimal point, but to the left of the first non-zero digit, right. They are not significant. They are not significant. Okay, they are not significant. Then you have zeros, the next point, that is zeros between two non-zero digits. zeros between two non-zero digits, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर में 3 और 8 के बीच में ज़ीरो है, तो ये जो ज़ीरो होगा वो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा, ये जो ज़ीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा. देन यू हैव the terminal zeros without decimal point are not significant. For example, अगर तुम्हारे पास 30000 ऐसा एक नंबर है, तो वो जो पीछे के टर्मिनल ज़ीरोज़ है दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो इस नंबर में सिर्फ सिग्निफिकेंट कौन सा होगा, दैट इज़ 3. ओके, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा. बट इन अदर केस इफ़ यू हैव 300.00, तो इसमें जो पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के पहले वाले ज़ीरोज़ हैं, ओके, जो कि 3 के बाद में आ रहे हैं, मतलब 300, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट्स हो जाएंगे, 3 0 और 0, ओके, क्योंकि इधर पे डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द terminal zeros with a decimal point are significant. This is what I was explaining. Okay, next is the rule for arithmetic operation with significant figures. अगर तुमको एडिशन करना है तो उसमें तुमको देखना पड़ेगा लीस्ट डेसिमल पॉइंट्स. एडिशन में तुमको देखना पड़ेगा लीस्ट डेसिमल प्लेस. जैसे कि फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में 3.21 का लीस्ट डेसिमल प्लेस है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस है, वाइल नीचे वाले नंबर में दैट इज़ 4.222 इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है. तो जो लीस्ट डेसिमल प्लेस है वो वाला नंबर कंसिडर करके हमको आंसर लीस्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा. जैसे कि 7.432 को हमने राउंड ऑफ किया हुआ है 7.44 पे, राइट. देन यू हैव द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. इसके अंदर में हमको देखना है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. ओके, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स नहीं देखने, यहाँ पे डिजिट्स देखना है. ओके, जैसे फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल यू हैव 3.21 इंटू 4.222, राइट. तो यहाँ पे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स किस में है, 3.21 के अंदर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो ये जो है आंसर, उसको हम लोग को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है. ओके, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट उसके डेसिमल प्लेसेस देखे जाए. ओके, एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ डायमेंशंस. डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स विच इज़ रेज टू द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. अब हर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ पे एक डायमेंशन दिया हुआ है. जैसे डायमेंशन ऑफ लेंथ इज़ डिनोटेड बाय n, राइट. डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ डिनोटेड बाय a. तो ये सब जो है आपको लर्न करना पड़ेगा एंड इसी से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं. हाउ वी कैन रिड्यूस दैट, इसको पावर्स लगा के हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस रिड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरिया है. ओके, एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो L इंटू L, तो ये हो जाएगा L की पावर 2. तो यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे पावर लगा दिया. तो दैट इज़ हाउ डायमेंशंस आर डिनोटेड. ओके, देन यू हैव द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज़ वेलोसिटी. वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम.
तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन इज डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक टाइप का लेंथ है, ओके। या तो तुम उससे भी याद रख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो उसके अंदर में कौन सा डायमेंशन आ जाएगा, एल, दैट इज़ लेंथ का डायमेंशन। नीचे में आ जाएगा टाइम का डायमेंशन, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, ओके। Like this, in the exam you have to derive the dimensions of various physical quantities. Then the next thing is application of dimensional analysis, okay. So the first application is to convert unit of physical quantity from one system to another. तो यहाँ पे एक मैंने करके दिखाया है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हमें m1 l1 t1 कंसिडर करना है। ये डेरिवेशन आपको नहीं आएगा, आपको सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है, जैसे इस एग्जाम्पल में करा हुआ है, ओके। सो द फर्स्ट थिंग इज we have to consider m1 l1 t1 as dimension of system 1. Then we have to consider m2 l2 t2 as dimension of system 2, okay, which we have to find out, okay. We know that quantity is equal to n into u. तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग को कैसे क्वेश्चन में देगा कि कन्वर्ट करना है तुमको 1 न्यूटन इंटू डाइन, ठीक है। तो हमको 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने के लिए डाइन का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज़ n, राइट। n न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज़ n, ओके। सो हियर वी हैव q इज इक्वल टू एन यू, राइट। सो n यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, u इज़ यूनिट। नाउ वी नो दैट डायमेंशनल फॉर्मूला q जो है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, m पे डिपेंड करेगा, l पे डिपेंड करेगा, t पे डिपेंड करेगा। एंड ये जो m l t जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है उस पर कुछ तो पावर्स होंगे, राइट। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस, राइट। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स रेज टू फंडामेंटल quantity, okay. Then you have this formula n2, that is the numerical value of the second system, right. n2, that is the numerical value of second system, is equal to n1 into m1 upon m2 की पावर a, l1 upon l2 की पावर b, and t1 upon t2 की पावर c. To understand this better, we have this example, that is we have to convert here 1 joule into erg, right. तो यहाँ पे हमने पहला सिस्टम ले लिया, दैट इज़ जूल, ठीक है, SI, ठीक है। दूसरा सिस्टम हमने ले लिया अर्क, क्योंकि हमें n2 फाइंड करना होता है, तो अर्क को हमने दूसरे सिस्टम में रख लिया और जूल को हमने फर्स्ट सिस्टम में रख लिया, ओके। सो CGS सिस्टम है अर्क, राइट। तो CGS सिस्टम के अंदर m की वैल्यू होती है 1 ग्राम, l2 की वैल्यू होती है 1 सेंटीमीटर, t2 की वैल्यू होती है 1 सेकेंड, राइट। देन SI यूनिट्स के अंदर, दैट इज़ जूल के अंदर में m1 जो है उसकी वैल्यू होती है 1 kg, फिर l1 जो है उसकी वैल्यू होती है 1 मीटर। तो 1 kg को हम लोग लिख सकते हैं 1000 ग्राम एंड 1 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, लाइक दैट। t1 जो है 1 सेकेंड है, दोनों में सेम ही रहता है। तो अभी वी हैव टू सब्सटीट्यूट दिस फॉर्मूला में, वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ ऑफ दीज इनटू द फॉर्मूला, राइट। सो इसको सब्सटीट्यूट करने के बाद तुम्हारा कुछ ये वैल्यू आएगा एंड देन यू हैव टू ऐड द पावर्स एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, ओके। इसके लिए हम एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, which states that only those physical quantities having same dimension can be added or subtracted from each other. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये वेरी फेमिलियर फॉर्मूला, दैट इज़ s इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसके अंदर में s का डायमेंशन क्या होता है, s इज़ नथिंग बट डिस्टेंस का डायमेंशन होता है लेंथ, ओके। उसके बाद में ut, u इज़ नथिंग बट वेलोसिटी एंड टाइम इज़ t, राइट। वेलोसिटी का हमने निकाला था ऊपर में lt माइनस 1 इंटू टी, तो t माइनस 1 से t कट जाएगा एंड विल हैव अगेन लेंथ एज अ डायमेंशन। लाइकवाइज इसका भी डायमेंशन लेंथ ही आएगा, ओके। देन वी हैव द नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज़ डिड्यूसिंग द रिलेशन या द फॉर्मूला अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज़। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस बाय डूइंग वन क्वेश्चन. First, we'll consider a particle of mass m moving around the circle with speed v and radius of the circle is given r. Okay. Then you have force F which acts along the center of the circle. So we have to find the formula of S. So F,
सो यहाँ पे f जो है इसको हमको निकालना है और हमें बाकी जो गिवन है दैट इज़ रेडियस, वेलोसिटी एंड मास m, रेडियस, वेलोसिटी एंड मास m, राइट। सो इन तीनों को हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानना है f के। हियर f डिपेंड्स अपॉन, सोल्यूशन में अगर हम लोग देखेंगे हियर f डिपेंड्स अपॉन r, m एंड v, राइट। तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, r की पावर b, v की पावर c, राइट। तो f इज़ इक्वल टू k m की पावर a, r की पावर b एंड v की पावर c, वेर k इज़ द कांस्टेंट। हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, राइट। फिर हम लोग को लिखना है फोर्स का डायमेंशन दैट इज़ mLT-2 इज़ इक्वल टू, अगेन मास का जो डायमेंशन है, ये मास का जो डायमेंशन है वो हमने नीचे लिखा है दैट इज़ m की पावर a, रेडियस का डायमेंशन होता है l की पावर b, देन वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1 की पावर c। अब इनको हम लोग जब टैली करेंगे इसके अंदर में, तब हमें मिलेगा कि m की पावर a है, फिर l की पावर b प्लस c कैसे आया, इधर एक l है, राइट, और इधर एक l है और इधर भी एक l है, तो l की पावर b है एंड l की पावर c है, ठीक है। तो l की पावर b और l की पावर c में पावर्स ऐड हो जाएंगे दैट इज़ l टू द पावर b प्लस c एंड t की पावर माइनस c आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड के जो डायमेंशंस है उनकी जो पावर्स है उनको ऐड कर देंगे। सो कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ बोथ द साइड वी गेट a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -1 एंड c इज़ इक्वल टू 2। ये सिंपल हम लोग जो इक्वेशंस लगाते थे 7th 8th में वैसे लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। From that we get f is equal to 1 into m to the power 1 r to the power of m to the power 1 r to the power of -1 and v to the power of 2। So f is equal to mv square upon r। ये सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आता है। So with this I'll end my explanation. I'll be attaching a PDF in the description for some questions for practice. Also you'll get these notes on my Telegram channel. The link for my channel is also attached in the description. I hope you found this video helpful. Do like, share and subscribe for more such last minute revision notes.